الله الرحمن الرحيم. كتاب القصاص. الفصل الأول. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والسيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة. متفق عليه. আমরা সামনে বাড়ি থেকে যখন পড়লে وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. وفي رواية: فلما أهويت لأقتله قال: لا إله إلا الله. أقتلوه بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله. فقال: يا رسول الله، إنه قطع إحدى يدي. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله. فطعنته فقتلته فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله. قلت: يا رسول الله، إنما فعل ذلك تعبدا. قال: فهلا شققت عن قلبه. متفق عليه. وفي رواية جندب بن عبد الله البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال له مرارا. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 خريفا. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتفجر بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يغرق نفسه يغرقها في النار والذي يطعنها في النار. رواه البخاري. जी खत्म होगा तो जोर खत्म होते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. عن جابر رضي الله تعالى عنه जी وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع أخذ سكينا فجزع بها يده ولما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسي فحرمت عليه الجنة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه ومرض فجزع وأخذ مشاقص له जी مشاقص وقضى بها براجمه وخشب جزاه حتى مات ورآه زبير بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغيدا مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك فقال غفر لي بهجرته إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراك مغطيا يديه 18 नंबर कमरे के लड़कों को बुला قال قيل لي لن نصلح منك ما أرسلت فقد صحت غير على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ولديه فاغفر رواه مسلم क्या اللهم وليديه فاغفر رواه مسلم وعن ابي شريح الكعبي رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم انتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القبيل من هذيل وانا والله عاقله من قتل بعده قبيلا فاهله إن أحب قتلوا وإن أحب أخذوا وإن أحب قتلوا وإن أحب أحتذوا الأرض رواه الترمذي والشافعي وفي شرح السنة الإسناد وصرح بأنه ليس في الصحيحين عن أبي شريح رضي الله تعالى عنه وقال وأخرجه في رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني بمعناه وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن يهوديا غض رأس جارية بين حجرين وقيل لها من فعل بك هذا فلان حتى سمي اليهود ومات برأسها فهي باليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه قال كسرت النبي وهي أحمد أنس بن مالك ثنية جارية من الأنصار وله النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالقصاص فقال أنس بن نضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص ورضي القوم وقبلوا الأرش وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو اقسم على الله لا بر متفق عليه وعن ابي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال سألت عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن فقال والذي خلق الحفظ وقرأ النسم ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يؤتى رجل بالكتاب وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال الأخذ وفاق الأسير حتى يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تقتل نفس ظلما في كتاب العلم जी अल्लाह और जब हदीस पढ़ी जा रही है तिलावत हो रही तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अदब बादब हो के बैठ जाए ताहियात की शक्ल में असल तो मतन है तशरीह तो असल नहीं असल तो हदीस का मतन है तो ये कोशिश करनी चाहिए इसकी बड़ी बात होती है एक बात दूसरी बात ये है कि ये आप मुझसे ये तवक्को बिल्कुल मत रखना कि जिस तरह उस्ताद जी पढ़ा रहे मैं उस तरह पढ़ाऊँगा या मैं उस तरह पढ़ा सकता हूँ कोई मुनासिबत ही नहीं मेरे उस्ताद जी बस ये ज़हन में रखिए बस थोड़ा बहुत जो है ना ऐसे कोशिश करते रहेंगे हम भी और आप भी साथ साथ मिल तो ये अच्छी तरह से ठीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा किताबुल क़िसास है क़िसास बाब नसर से क़स्सा क़ुस्सो इसके मुख्तलिफ माने आते हैं एक माना इसका है बाब नसर से काटना कैंचे से किसी चीज़ को काटना किसी वजह से कैंची को मक़स भी कहा जाता है अरबी क़स्सुशा बाल काटना एक मान और दूसरी मान इसका है किसी के पीछे चलना
कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हमशीरा का वाक़या जहाँ पर है, उनके वालिदा से कहते वक़ुस्सैहि फ़बसरत आते वक़ुस्सैहि, इसका मतलब क्या है? इसी से तो उसके पीछे पीछे चलती रहो। ये ताबूत कहाँ पर जाता है और वो साइड से देखते रहे, तो इसी से। और इसी तरह यही माना है जो सूरह कहफ में फर्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, तो क़ससा वो ये फर्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, इसी से। इसका तर्जुमा जो है जब मैं पढ़ता होता था, इसके तर्जुमे में बहुत परेशान होता था कि फर्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, फर्तद्दा का मतलब लौटना है, अला आसारिहिमा बनता नहीं था, तो बहुत परेशान। बल्कि एक दफ़ा मैं उस्ताद जी के पास भी गया, मौलाना अताउल्लाह साहब दाऊद बरकातहू बना रहे, उनके पास में गए, मैंने उसका तर्जुमा समझ लिया, तो उनका मेरे ज़हन में नहीं है। तो फिर मेरे तफसीर अल-कश्शाफ दी, जहाँ पर भी ऐसा कोई मसला पेश आते ना तो कश्शाफ देखते हैं, अक्सर तो वहाँ से बंदा निकल जाता है, तो उसका नुक्ता बयान करते हैं। तो फिर वहाँ पे लिखा हुआ फर्तद्दा अला आसारिहिमा, ये अला आसारिहिमा जार मजरूर फर्तद्दा के मुतालिक नहीं है। असल में ये खराब इधर से पैदा होती है ना कि हम इसको बनाते हैं अला आसारिहिमा फर्तद्दा, फिर माना समझ नहीं आता। तो क़ससा इसके मुतालिक है मुक़द्दम, और क़ससा मफ़ऊल मुतलक़ है, ठीक है। फर्तद्दा यक़ुस्सानि अला आसारिहिमा क़ससा, असल तर्जुमा यूँ बनेगा, अब बिल्कुल वाज़ेह हो जाए कि वो लौटे अपने आसार कदम को देखते उनके पीछे चलते होंगे। इन मसलन वो दोनों जा रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम यूशा अलैहिस्सलाम, बाद में पैगंबर बन गए, उसको नहीं बने थे ना, तो वो साहिल समंदर पर गए, आगे निकल गए, खैर वो वाक़या लंबा है, तो फिर आगे निकल के पता चला काम क्या हो, आगे निकले हैं, तो फिर वो अपने निशान कदम को देखते उनके पीछे चलते वापस आए, तो अब वो तर्जुमा वाज़ेह हो, तो पीछे चलना ये तर्जुमा है। और इसी तरह इसका तर्जुमा जो है वो मसावात भी है, बराबर, वजुरूह क़िसास, समझ आए। और इसी तरह चौथा माना जो है उसका वो बयान करना, बयान करना, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, और भी आगे दफा है। तो ये इसके मुख्तलिफ मानी हैं। तो क़िसास जो हम लेते हैं ना, तकरीबन तमाम मानी की रियायत उसमें की जाती है कि जब किसी को कोई कत्ल करता है तो कातिल जो है, कातिल मकतूल के वरसा उसके पीछे पड़ते हैं, पीछे चलते हैं, ठीक है, और उसको इस तरह काटते हैं जिस तरह उसने किसको काटा है, मकतूल, इस तरह काट कर, तो इसमें क्या होती है, मसावात भी पाई जाती है, पीछे चलने का माना भी पाया जाता है और काटने का माना भी। तो ये लोगों में माना, और इस्तिलाही तरीके किए जैसे उसने किया उसी तरह अमल उसके साथ किया जाए, उसने कत्ल किया है किसी को तो इस तरह उसको कत्ल किया जाए। तो ये इस्तिलाही और लोगों में माना जो एहसास किया। अब देख लीजिए अल-फ़स्ल अव्वल, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हलाल नहीं है किसी इंसान, किसी मुसलमान का खून, ऐसा मुसलमान जो गवाही देता कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल, मगर तीन में से एक हिस्सा है, नफ्स के बदले में नफ्स को कत्ल किया जाए, और शादीशुदा जानी जना करने वाला, और अपने दीन से निकलने वाला। आगे उसकी ताकीद के जमात को, इन मुसलमानों की जमात को छोड़ने वाला। अच्छा, ये हदीस आपके सामने आ रही है कि किसी भी मुसलमान का खून बहाना जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देता हो, हलाल नहीं, मगर तीन बातों में से अगर कोई बात पाई जाए तब हलाल है।
मसलन पहली बात क्या है, नफ्स बिन्नफ्स, नफ्स के बदले में नफ्स को कत्ल किया जाएगा। मसलन किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उससे बदला दिया जाएगा, उसे कत्ल किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इस हवाले से इख्तिलाफ है कि जो हम क़िसास लेंगे, बदला लेंगे, तो उसमें सिर्फ जिन्स का लिहाज रखा जाएगा या सिफात का लिहाज भी रखा जाएगा। क्या मतलब? मतलब है कि आज़ाद होने का, गुलाम होने का, मुज़क्कर होने का, मुअन्नस होने का, तो सिफात का लिहाज भी रखा जाएगा या सिर्फ जिन्स का लिहाज रखा जाएगा? बस इंसान को कत्ल किया तो कत्ल किया। तो इस हवाले से इख्तिलाफ। अइम्मा सलासा फरमाते हैं कि सिफात का लिहाज भी रखा जाए। मसलन अगर किसी गुलाम ने किसी आज़ाद को कत्ल कर दिया तो गुलाम को कत्ल किया जाए, लेकिन आज़ाद ने अगर किसी गुलाम को कत्ल किया है तो आज़ाद को कत्ल नहीं किया जाए, वो ये फरमाते हैं। और वो दलील देते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा। तो देखो यहाँ पर आज़ाद का मुकाबला आज़ाद से, आज़ाद के बदले में आज़ाद, गुलाम के बदले में गुलाम, और मुअन्नस के बदले में मुअन्नस। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर सिफात की समझ आ रही है कि सिफात का लिहाज रखा जाए। अइम्मा सलासा फरमाते हैं। अहनाफ फरमाते हैं कि सिर्फ जिन्स का लिहाज रखा जाए, सिफात का लिहाज नहीं रखा जाए। अहनाफ वो आम नुसूस से इस्तेदलाल करते हैं जिसमें आम अल्फाज आए। वक़दमना अलैहिम फ़ीहा अन्ना नफ्स बिन्नफ्स, नफ्स के बदले में नफ्स। और इसी तरह दूसरी जगह पर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकुम फिल क़िसास हयात, मुतलक क़िसास का लफ्ज़ यहाँ पर मुतलक है, कोई सिफात का जिक्र यहाँ पर नहीं। तो यहाँ से अहनाफ इस्तेदलाल करते हैं। उन हज़रात ने इस्तेदलाल किया अल-हुर्रु बिल-हुर्र से, तो फरमाते हैं इसका मफ़हूम मुखालिफ क्या है कि आज़ाद को आज़ाद के बदले में, तो आज़ाद को गुलाम के बदले में नहीं ख़त्म किया जाएगा, और उनके यहाँ मफ़हूम मुखालिफ मुतबर है। तो अहनाफ उनके इस्तेदलाल का एक जवाब तो ये देते हैं, तो देखिए मफ़हूम मुखालिफ हमारे यहाँ मुतबर है, लिहाजा ये इस्तेदलाल हमें तस्वीर नहीं। और दूसरा जवाब ये देते हैं कि असल में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एक जो ज़माना जाहिलियत की रस्म थी उसका खात्मा किया है। तो ज़माना जाहिलियत में ऐसा होता था कि अगर कोई घटिया ख़ानदान है, उसने किसी शरीफ ख़ानदान, उसके जो है किसी मसलन औरत ने, मसलन मर्द ने किसी औरत को कत्ल किया, शरीफ खानदान की औरत को कत्ल किया, तो उसके बदले में उस खानदान के मर्द को कत्ल किया जाता था। और अगर शरीफ खानदान के गुलाम को कत्ल किया तो आज़ाद को कत्ल किया जाता था। अगर आज़ाद ने आज़ाद को कत्ल किया तो उसके बदले में 2 बंदों को कत्ल किया जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस रस्म का खात्मा फरमाया, कुरान पाक में उसका खात्मा फरमाया कि अल-हुर्रु बिल-हुर्र वल-अब्दु बिल-अब्द वल-उन्सा बिल-उन्सा। तो ये जो है ना वो मुराद असल मकसद है। बाकी अहनाफ इस हदीस से भी इस्तेदलाल करते हैं कि इसमें मुतलक नफ्स के बदले में नफ्स को कत्ल किया जाएगा इसका से बस। अच्छा, आगे अगला लफ्ज़ है सय्यिब का। सय्यिब ज़ानी, सय्यिब वो शख्स जो
जो है निकाह कर चुका हो, खलवत सही हो चुकी हो, तो उसके बाद अगर उस ज़िना का इर्तिकाब करता है तो उसे कत्ल किया जाए और रजम किया जाएगा उसको। वल मारिक लिदीन, मारिक अपने दीन से निकलने वाला, जमात को छोड़ने वाला, मुर्तद होने वाला, जो मुर्तद हो जाए तो उसी भी कत्ल किया जाएगा। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर मर्द मुर्तद हो गया तो उसे 3 दिन की मोहलत दी जाएगी, उसके जहन में जो शुकूक हैं, जो इतराज़ात हैं, उनको दूर किया जाए। अगर वो नहीं आता बाज तो फिर उसे कत्ल किया जाए। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि कत्ल हम नहीं कर सकते, ये अदालत का काम है, अदालत उसे सजा सुनाए। हमारा काम है, हम सजा नाफिज नहीं कर सकते, अदालत का काम। अब मर्द के बारे में तो इत्तेफाक है कि मर्द को कत्ल किया जाएगा 3 दिन के बाद। अगर औरत मुर्तद हो जाए उसके बारे में क्या हुक्म, तो इस हवाले से इख्तिलाफ। अइम्मा सलासा फरमाते हैं कि औरत को भी कत्ल किया जाएगा जिस तरह मर्द को कत्ल किया जाता है। अहनाफ फरमाते हैं कि औरत को कत्ल नहीं करें, औरत जो है वो उसको जेल में रखें, कैद में रखेंगे, या तो वो तौबा कर ले कुफर से, दोबारा मुसलमान हो जाए, या वो कैद में रहेगी, जेल में रहेगी, बस जेल में रहेगी हमेशा के लिए। अइम्मा सलासा फरमाते हैं कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, जो भी अपना दीन बदल तो उसे कत्ल कर। अब वो मुतलक है, ये नहीं कहा कि मर्द बदल दे, औरत बदल दे, बस जो भी दीन बदल दे उसे कत्ल कर। तो शरीर में मुतलक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह एक और रिवायत से उससे दाल करते हैं कि अल-यौम इर्तद्दत फदउहा फ़इन आदत वइल्ला फ़क़्तुल फज़रिब उनुक़ा, अगर कोई मुर्तद हो जाए और तो उसे दाव ठीक, फदउहा फ़इन आदत, अगर लौट आए ठीक है, वइल्ला फज़रिब उनुक़ा, उसकी गर्दन दे दो, इसको मतलब तो इसलिए उसे भी कत्ल किया जाए। जबकि अहनाफ फरमाते हैं कि नहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़त्ल निसाई वस्सबियान, हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। हत्ता कि मैदान जहाद में भी उनको काफिर जो लोग हैं उनकी औरतों को और बच्चों को भी कत्ल करने से क्या किया है, मना फरमाया, तो उसे नहीं कत्ल किया जाए। और इसी तरह एक हदीस में हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हुआ है, अय्युमा इम्रअतिन इर्तद्दत अल इस्लाम फदउहा फ़इन आदत फ़क़बल मिन्हा वइन अबद फस्ततिबा। फरमाया अगर कोई औरत मुर्तद हो जाए उसे दावत दो, अगर वो लौट आए तो उसकी उस तौबा को कबूल कर, और अगर वो इनकार करते फस्ततिबा तो उसे तौबा करवा दो, लेकिन कत्ल से जो है वो मना फरमाया। और इसके अलावा अक्ली दलील भी है अहनाफ के पास, तो फरमाते हैं कि देखिएगा जो मर्द होता है ना वो अगर मुर्तद हो जाए तो वो बगावत कर सकता है, या वो काफिरों की मदद कर सकता है, मुसलमानों के खिलाफ कुव्वत जमा कर सकता है, तो इसलिए उसको कत्ल कर दो, बजाय ये कि वो काफिरों के साथ मिल जाए, मुसलमानों के खिलाफ कुव्वत जमा कर इसको कत्ल कर दो।
लेकिन औरत इस तरह नहीं कर सकती कि वो कुव्वत जमा करे, मुसलमानों के खिलाफ काफिरों से लड़े, इसलिए उसे कत्ल नहीं किया जाए। बाकी जो उन्होंने फरमाया कि ये क्या नाम है, मोहब्बत दीन व फ़क़्तुलूहु हो, तो हम अहनाफ के जवाब देते हैं कि देखो ये आम हो, तो जो नसूस हमने जिक्र की उन नसूस ने इसकी तखसीस कर दी। अब इसको खास कर दिया किसके साथ? मर्द के साथ। लिहाजा मर्द को कत्ल किया जाएगा, औरत को कत्ल नहीं किया जाएगा। अच्छा, बस एक बात, अब किस्सा पुराना है लेकिन हमारे मेरे ज़हन में बात आ गई। अब मिसाल के तौर पर बेनज़ीर को जो कत्ल किया गया, किस बुनियाद में कत्ल किया? जिसको नहीं किया। देखो ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हम तो भी मतलब कहते थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुर्तद हो सकती थी ना, तो हम लोगों ने पहले जो कत्ल करना जायज़ था तो क्या नाम है उसको, मलाला यूसुफ से, उस पर हमला हुआ। अब हमला करवाया उसने जो भी है वो तो अलग बात, लेकिन करवाया अगर ना हो, उसने हमला करवाया ना हो खुद, और किसी ने किया, किसी ने भी, तालिबान ने किया और किसी ने भी किया हो, वैसे मशहूर हुआ कि उससे खुद करा, तो क्या वो जायज़ था? ज्यादा से ज्यादा हम नहीं कह सकते ना कोई मुर्तद हो गई, ये तो हम नहीं कह सकते, तो बहुत बड़ी बात है, जरूरत कोई कर नहीं सकता किसी के बारे में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता था, तो क्या उसका कत्ल जायज़ था? अल्लाह पर, तो इसलिए जज्बाती फैसले नहीं करते होते, खासकर उलमा हज़रात या मुफ्तियान को जज्बात पे तो फैसले नहीं करते, और तो शरीयत के उसूल में झगड़े होते हैं, तो शरीयत को देखकर फैसला किया जाता है। समझ आया? अब मैं भी तरफा पे नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ हदीस की तशरीह की। हाँ जी, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन रहता है मुसलसल वसाअत में अपने दीन के हवाले से, जब तक वो किसी हराम खून का इर्तिकाब नहीं करता। यानी मुसलमान शख्स अपने दीन में वसाअत में होता है, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत की उम्मीद में होता है, जब तक वो किसी हराम खून का इर्तिकाब नहीं करता। जब किसी को नाहक कत्ल कर देता तो गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से जो रहमत की उम्मीद थी, तो एक वसाअत थी ना, तो उसमें तंजीह पैदा किया। गोया कि वो जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत थी, उस जिसमें वसाअत थी, वो उस पर तंजीह की जाती। इसी वजह से कुरान पाक में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वमन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीअ। जिसने बेगुनाह किसी को कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरे जहान को कत्ल कर दिया, तो फसाद है। एक शख्स को कत्ल करने से फसाद पैदा हो जाएगा और फसाद फैलता रहता है। वो आगे बढ़ते चीज अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले लोगों के दरमियान क़यामत के दिन जिस चीज़ का फैसला किया जाएगा वो खून के बारे में सबसे पहले फैसला किया जाएगा। अच्छा जी, इस हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले खून के बारे में फैसला होगा। जिसने किसी का नाहक खून बहाया होगा तो उसके बारे में फैसला किया जाएगा। इस हदीस में ये एक और हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलाह फ़इन सलहत सलह साइरु अमलिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत के दिन सबसे पहले तो हिसाब होगा किसी शख्स का
वो किस चीज का होगा? नमाज का। अगर नमाज दुरुस्त निकलाई तो बाकी सारे अमल दुरुस्त निकलेंगे। अगर नमाज खराब निकला तो बाकी सारे अमाल खराब निकलेंगे। लेकिन इसका ये मत अभी आ रहा था, तो अभी इसी मफहूम की बात कर रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो उसकी बाकी जो इबादत है वो कबूल नहीं होती। ये मतलब इसमें अभी जो है दो फरीक के दरमियान इख्तिलाफ था। मुझे फ़ोन किया, मैं आ ही रहा था रास्ते में मदरसा से निकल रहा था, ये इख्तिलाफ चल रहा। एक फरीक कहता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी दीगर इबादत को कबूल नहीं होती, और दूसरी फरीक का मौक़िफ़ ये था कि नहीं, वो कबूल होती। तो मतलब इसका ये है कि अगर उसके और बाकी अमल खराब रखने का मतलब इसका ये है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता तो बाकी अमल कैसे कर सकता होगा? यानी जो शख्स नमाज को खराब करता है तो बाकी अमल को भी खराब करता होगा। ये मतलब है। ये मतलब नहीं है कि बाकी इबादत उसकी कबूल नहीं होती। अच्छा खैर, ये तो अलग बात है। अब बजाय तारुज़ नजर आ रहा है, तो इस हदीस में है कि खून के बारे में फैसला होगा, उसमें नमाज के बारे में होगा। तो इसका एक जवाब ये है कि हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज के हवाले से फैसला, और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खून के बारे में फैसला। ठीक, या यह कह सकते हैं इबादत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, और मामलात में सबसे पहले खून का हिसाब। या तीसरा जवाब ये भी दिया जा सकता है कि अवामिर में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, नमाज पढ़ने का हुक्म है, और नवाही में सबसे पहले खून का फैसला किया जाएगा कि इससे मना किया गया नवाही से। आगे देख लीजिए, मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बात, वो फरमाते हैं उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, आयत का तो पता है क्या माना जी? अखबर जी, बता दी मुझे, अगर मैं किसी शख्स से मिलूं काफिर होने से, हम दोनों आपस में लड़े और वो मेरा एक हाथ तलवार के साथ मार दे और उसे काट डाले, फिर वो मुझसे पनाह ले ले एक दरख्त की आड़ में, फिर वो कह दे कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ अल्लाह के लिए, और एक रिवायत में है कि जब मैं उसे गिरा दूं कि उसे कत्ल करूं, तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, क्या मैं उसे कत्ल करूं? इसके बाद तो उसने वो कलमा कहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसे कत्ल मत कर। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, उसने मेरा एक हाथ काटा, एक हाथ काटा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे कत्ल मत कर। अगर तूने उसे कत्ल किया तो बेशक वो आपकी जगह पर हो जाएगा, इससे पहले कि आपने उसे कत्ल किया था, और तुम उसकी जगह पर हो जाओगे। ये कलमा इससे पहले कि उसने कलमा कहा जो उसने कहा। अच्छा जी, मफ़हूम तो वाज़ेह है कि मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हाँ किसी काफिर से मेरा मुकाबला हो जाए, वो तलवार से मेरे हाथ काट डाले, जब मैं उसे कत्ल करने लगूँ, बिल्कुल कत्ल करने के करीब आ जाऊँ, तो उसे बना लेंगे और मुसलमान, अब उसे कत्ल कर सकता हूँ कि नहीं? तो आप ने कहा नहीं कत्ल। फिर उन्होंने सवाल किया, फिर आप कहा कत्ल नहीं कर, मैंने कहा मेरा हाथ काटा रहा, तो मैं कत्ल बात कर। आखिर जुमला जो फरमाया कि फ़इन क़तलतहु फ़इन्नहु बिमंज़िलतिका क़ब्ल अन तक़तुलहु व इन्नका बिमंज़िलतिही क़ब्ल अन यक़ूल कलिमा। अगर तुम उसे कत्ल करोगे तो तुम उसकी जगह पर हो जाओगे, उसे कत्ल करने से पहले तो उसकी जगह थी, और वो आपकी जगह पर हो जाएंगे जो कलमा पढ़ने से पहले आपकी जगह थी। क्या बात?
मतलब है फ़इन्नहु बिमंज़िलति, कि वो आपकी जगह पर हो जाए कत्ल करने से पहले। मसलन कत्ल जब आपने नहीं किया था उसे, वो काफिर था उससे पहले, तो आप महफूज उद्दम थे और वो गैर महफूज उद्दम था, समझा? उसका खून महफूज नहीं है, यानी उसका कत्ल करना जायज, और आप महफूज उद्दम थे, आपको कत्ल करना जायज नहीं था। लेकिन फिर जब उसने कलमा पढ़ लिया और आपने उसे कत्ल कर दिया, जब उसने कलमा पढ़ लिया वो मुसलमान हो गया, तो वो महफूज दम हो गए। कलमा पढ़ने के बाद जैसे आप थे, उससे कलमा पढ़ने से, उसको कत्ल करने से पहले, अब वो आपकी जगह पर आ गया, वो महफूज दम हो गया, और आपने उससे कत्ल कर दिया, उसके कत्ल करने की वजह से आप गैर महफूज दम हो गए। आपको कत्ल करना अब जायज, उसको कत्ल करना जायज नहीं था कलमा पढ़ने के बाद, और आपने उसे कत्ल कर दिया, तो आपको कत्ल करना अब जायज है उसको कत्ल करने की वजह से। ये इसकी बाज़ारत ने भी कहा कि आप काफिर हो जाएंगे, वो मुसलमान आपकी जगह पर आ जाएगा, लेकिन अगर ये मुराद देंगे तो फिर एक तखलीस या तशदीद करना, ज़जर और तौबीख करना, ठीक है? यानी असल माना जो है इसका नहीं होगा, इसलिए कि कत्ल करने से कोई दायरा इस्लाम से खारिज नहीं हो जाता। तो इसकी इसका मतलब समझ आ गया ना, वज़ाहत तो समझ आ गई जी। आगे देख लीजिए, उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रवायत है, मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कुछ लोगों के पास जो हाइना कबीला में से, तो मेरे में से एक शख्स के पास आया और मैं उसे नेज़ा मारने लगा। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने उसे नेज़ा मार दिया और मैंने उसे कत्ल कर दिया। फिर मैं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर आया, मैंने उनको बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि अगर उसे कत्ल किया और वक़द शाहिद, तहक़ीक़ उसने इसकी गवाही दी थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल, उसने ऐसा किया था ताउज़, पनाह लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने उसका दिल चीरा क्यों नहीं। और एक रिवायत में यह है कि जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु बहरी फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम क्या करोगे ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ जब ये कलमा आएगा क़यामत वाले दिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ालहु मिरारन, कई दफ़ा ये जुमला इरशाद फरमाया। मतलब तो इसको वाज़ेह है। उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला इनको जानते होंगे आप, ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हैं। ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना थे, और पहले उनको कहा जाता था ज़ैद इब्न मुहम्मद। फिर जो सूरह अहज़ाब की आयत है उदऊहुम लिआबाइहिम हुव अक़सतु इंदल्लाह, जब ये आयत नाज़िल होगी तो उसके बाद फिर अपने वालिद की तरफ इनकी निस्बत की गई, ज़ैद इब्न मुहम्मद की जगह पर ज़ैद इब्न हारिसा कहलाने लगे। अब ये इनके साहिबजादे उसामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे बहुत, दोनों से प्यार था, इनके वालिद से भी प्यार था, उसामा से बहुत प्यार था। तो वो कहते हैं कि जो है ना कि कुछ लोगों के पास हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, तो मैं एक शख्स को कत्ल करने लगा, उसने उस वक्त कलमा पढ़ लिया तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। उन्होंने ये समझा कि अब तो मैं बिल्कुल बस कत्ल के करीब हो चुका हूँ, इसको कत्ल करने के, ये जो पढ़ रहे अपने आप को अपनी जान बचाने के लिए पढ़ रहे, दिल से नहीं पढ़ रहा, और अब तो नज़ा का आलम है, ये उनका इज्तिहाद था। अब तो नज़ा का आलम है इसका, तो नज़ा के आलम में वैसे भी इस्लाम मोतबर नहीं, तौबा मोतबर नहीं है, तो ये उन्होंने इज्तिहाद किया।
इज्तिहाद करके उसे कत्ल कर दिया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे कत्ल किया आपने उसे? तो कहने लगे कि नहीं, उसने तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसे कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देखा? दिल चीरना था, कोई हार्ट सर्जरी करनी थी उसकी, दिल का ऑपरेशन थोड़ा करना, उसके दिल में क्या है और ना इसकी जरूरत, दिल से कहा नहीं कहा, इसके तो मुकल्लफ भी नहीं है। हमें कैसे पता चले इसके दिल से? हार्ट सर्जरी करेंगे फिर भी इसकी नहीं मालूम, इसको इको करवाएं या एंजियोग्राफी करवाएं फिर भी इसका पता नहीं चलना कि दिल से पढ़ने नहीं पड़ा, इसको तो पता चलना ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा दिल से पढ़ना नहीं पड़ा? बस हम तो जाहिर के मुकल्लफ है। तो आपने उसे क्यों कत्ल किया? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कई दफा कहा और फिर फरमाया कि तुम इस कलमे के साथ क्या करोगे जब वो कलमे के साथ आएगा और वो कहेगा अल्लाह ताला के सामने कि ये मैंने पढ़ा था, ये मेरा कलमा है और इसने मुझे कत्ल किया, क्या जवाब दो? लेकिन चूंकि उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का इज्तिहाद था, अगरचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पुरजोर मुखालफत की कि इज्तिहाद गलत था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन चूंकि कस्टन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, इज्तिहादी खता थी, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर दियत वाजिब नहीं फरमाई, क्योंकि ऐसा जो है वो किया जाता, तो इस वजह से। अच्छा, सवाल तो आखिर में कर लेते हैं जी, जी आगे देख लीजिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो किसी मुआहिद को कत्ल कर दे तो वो जन्नत की बू भी नहीं सूंघेगा और बेशक उसकी बू जो है वो महसूस होगी 40 साल की मसाफत से। जो किसी मुआहिद को कत्ल करे, मुआहिद वो जिसने इमाम या खलीफा के साथ आहद किया हो, किसी मुसलमान हुक्मरान के साथ आहद किया हो कि मुआहदा किया हो कि मैं आपके मातहत में रहूँ, मैं आपके क़वानीन कबूल करता हूँ, चाहे वो हरबी हो चाहे वो ज़िम्मी हो। ज़िम्मी का मतलब मुसलमानों के मुल्क में रह रहे हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, तो वो ज़िम्मी है, वाहिद ज़िम्मी और तो कबूल कर रहे क़वानीन मुल्क के। या मुस्तामिन हो, मुस्तामिन जो वीज़ा लेकर पाकिस्तान में आता है। अब वीज़ा लेने का मतलब ये है कि मैं वीज़ा ले रहा हूँ तो उस मुल्क में जितना अर्सा मैं रहूँगा उसके जो क़वानीन है उसके पास जारी करूँगा, तो ये मुआहदा है, तो उसे भी हम कत्ल नहीं कर सकते। अगरचे वो कोई बड़ा कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना, अगर यहाँ पर आता है वीज़ा लेकर तो वो मुआहिद बन चुका है, अब उसको हम यहाँ पर कत्ल नहीं कर सकते। उसका इसराइल का बिन्यामीन नेतन्याहू और कितना बड़ा जालिम है, कितना उसको खून बहा, लेकिन अगर मुआहदा करके पाकिस्तान में आता है तो हम उसे यहाँ पर नहीं कत्ल कर सकते, हम वहाँ पर कत्ल कर सकते हैं। हमारा इसराइल के साथ मुआहदा नहीं है, बाकी के साथ तो अक़वाम मुत्तहिदा में मुआहदा है, लेकिन इसराइल को हमने तस्लीम नहीं किया, तो इसलिए आप जाओ जिहाद कर सकते। और बाकी हम बांदी भी नहीं बना सकते, ये अक़वाम मुत्तहिदा का वहाँ दावा चलता है कि बांदी नहीं बना सकते, लेकिन चूँकि इसराइल के साथ हमारा वादा नहीं, तो ऐसे जिहाद कर बांदी बनाओ, बन जाओ जी, हाँ बंदी लगाओ, बांदी बेचो, तजारत करो, बिजनेस करो, बांदी खुद भी मजे लो और उनको भी मजे ले लो, समझ आ रही है? तो ये कर सकते। तो अच्छा जी, तो इसमें फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू जो है ना वो महसूस की जाएगी 40 खरीफ, 40 साल के मौसम। खरीफ कैसे कहते हैं?
खजा को मौसम खजा। तो मौसम खजा साल में कितने दफ़ा आता है? एक ही दफ़ा आता है। तो क्योंकि एक दफ़ा आता है 40 खजा, तो 40 साल हो। अच्छा जी, अच्छा, इसमें 40 साल का जिक्र है, बाद जमात में 70 साल का, बाद जमात 100 साल का, बाद जमात 500 साल का भी है। लेकिन वो लोगों के दराजात के एतबार से वो जो सबसे नीचे दर्जे में होगा उसको ज़्यादा मुसाफत से खुशबू महसूस होगी, जो करीब होगा कम मुसाफत से। अच्छा, यहाँ पर है तो खुशबू नहीं सुनेगा, तो ये इन मुआहिद को कत्ल करने से काफिर तो नहीं हुआ, तो कैसे खुशबू महसूस नहीं करेगा? तो एक जवाब तो इसका ये है कि ये ज़जर, तशदीद, तगलीज़ पर मामूल। और दूसरा ये है कि अगर उसने हलाल समझकर ऐसा किया, तो हलाल समझकर किसी को कत्ल करने से, क्योंकि वो पाबंदी है, उतनी कत्ल कर सकते हैं, हलाल समझता है तो दायरा इस्लाम से खारिज होगा और फिर महसूस नहीं करेगा। और बाद हज़रात ने कहा है कि ये जो महसूस नहीं करेगा, यही शुरू बाद में जो है ना जन्नत में दाखिल होगा और खुशबू महसूस करेंगे, तो कोई अवली में महसूस नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे देख लीजिए। अब हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो इबारत पढ़िए वहाँ तक। इबारत के साथ क्या करना है? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मन तरद्दा, जिसने अपने आप को गिराया पहाड़ से और कत्ल किया अपने नफ्स को, तो जहन्नम की आग में होगा, गिरता रहेगा उसमें हमेशा हमेशा के लिए। और जो शराब पिए और अपने नफ्स को कत्ल करे, तो उसकी शराब नहीं, माज़रत, वो जहर, जो जहर पीकर अपने आप को कत्ल करे, तो उसका जहर उसके हाथ में होगा, उसको पीता रहेगा जहन्नम के आग में हमेशा हमेशा के लिए। और जो कत्ल करते अपने नफ्स को लोहे के साथ, तो उसका लोहा उसके हाथ में होगा और अपने पेट में मारता रहेगा जहन्नम की आग में हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा, मन तरद्दा का असल माना गिरना पहाड़ से। अब दफा उनसे सूरह माइदा में जो 4 हराम दामन का जिक्र, उसमें वल मुतरद्दिया तो वल नतिया, तो मुतरद्दिया इसी से है, लेकिन यहाँ पर गिराना है अपने नफ्स को, कि जो खुदकुशी कर रहे, यानी अपने आप को पहाड़ से गिरा हमेशा हमेशा के लिए, वो जहन्नम में रहे। हमेशा हमेशा मुराद यहाँ पर तगलीज़ है। या दूसरा जवाब ये है कि अगर उसने हलाल समझ कर ऐसा किया, तो जाहिर है कि वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। खुदकुशी हराम है, जायज़ नहीं। जिस तरह किसी और को कत्ल करना हराम, इसलिए अपने आप को कत्ल करना भी हराम, इसलिए कि ये जो हमारी जान है, नफ्स है, ये हमारी मिल्कियत में नहीं, हम इसके मालिक नहीं। जिस तरह किसी और के मालिक नहीं है, उसको कत्ल करना हराम, इस तरह खुद को कत्ल करना भी हराम। और बाज़ औक़ात किसी और को कत्ल करने से ज़्यादा खतरनाक होता है, खुदकुशी ज़्यादा खतरनाक होती है, जब इसमें मायूसी का अवसर पाया जाए कि मसला गुर्बत है, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ नहीं दे सकता, या कोई तकलीफ आ जाए, अल्लाह ताला को नहीं मिला, वो नहीं नजर आता, तो मायूसी का अवसर हो, खत्म। अगर मायूसी का अवसर ना पाया जा रहा हो, तो फिर किसी और को कत्ल करना इससे ज्यादा बड़ा हो रहा है। और फरमाया कि जो जहर की सीन पर 3 हरकत कर सकते हैं जी। जहर पी के करता है तो वो पीता रहेगा, उसको तहस्सा पीता रहेगा, उसको तहस्सा वाले तफाउल से। और इसी तरह जो अपने लोहे के साथ अपने आप कदर करें, तो यह तवज्जो का माना भी तफाउल से हारना,
तो अपने पेट को फाड़ता रहेगा या मारता रहेगा, वो चूड़ा वो लोहा वगैरह, और उसमें क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। अगली बात देखिए, तो अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो गला घूम कर अपने नफ्स को कत्ल करे तो अपना गला घूमता रहेगा जहन्नम, और जो नेजा मार कर अपने आप को कत्ल कर दे तो वो नेजा मारता रहेगा आग में। अगली बात देखिए, जो अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काना फी मन काना, वो लोग जो आप तुमसे पहले गुजरे उनमें एक आदमी था भी जो जख्मी, जो जख्म लगा उसको फजजा, तो वो बेसबर हुआ, सबर ना हो सका उसने एक छुरी ली और उसके साथ अपने हाथ को काट दिया, तो ना रुका उसका खून यहाँ तक कि वो मर चला गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया बादरनी अब्दी, तो शख्स ने जल्दी की मुझसे आगे निकला अपने नफ्स के बारे में, बस मैंने भी उसका जन्नत को हराम कर दिया। मतलब वाज़ेह है, आखिर जो जुमला फहर्रमतु अलैहि जन्नह, मैंने उसको जन्नत को हराम कर दिया। अब एक जवाब हम दे चुके हैं, अगर उसने ये काम किया था हलाल समझकर तो दायरा इस्लाम से खारिज है, फिर तो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। अगर हराम समझने करने के फहर्रमतु अलैहि जन्नह से हुआ फिर क्या होगा, दुखूल अव्वली हुआ कि मैंने उस पर दुखूल अव्वली क्या कर दिया, हराम कर दिया, यानी जहन्नम में सजा भुगतने के बाद फिर वो जन्नत में से यानी कि तहवीज़ तशरीफ पर मामूल। अगली जगह देखिए, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि तुफ़ैल बिन अमर अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला ने जब हिजरत फरमाई, जब आप सब उसका हिजरत फरमाई मदीना मुनव्वरा, तो उन्होंने भी हिजरत फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक शख्स ने भी उनके साथ हिजरत फरमाई उनके कौम में से, तो वो शख्स बीमार हो, तो उससे सब्र ना हो सका, तो उसने तीर की पहचान और उसने अपने उंगलियों को जोड़ों को काटा, फिर उनकी दोनों हाथों से खून बहता यहाँ तक कि वो मर गया। फिर तुफ़ैल ने उसको देखा ख्वाब में कि उसकी हालत अच्छी है, और देखा कि उसने अपने हाथों को छुपाया हुआ है, तो कहा उनसे कि तेरे रब ने तेरे साथ क्या मामला किया, तो कह रहे हैं कि माफ किया मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत करने की वजह से है। फिर फरमाया कि मुझे क्या हुआ कि मैं आपको देख लूं अपने दोनों हाथों को आपने छुपाया हुआ। उसने कहा कि मुझसे कहा गया कि हम हरगिज नहीं दुरुस्त करेंगे, ठीक करेंगे वो चीज जिसको आपने खुद खराब किया। फिर वो किस्सा तुफ़ैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उसकी दोनों हाथों की मग़फ़िरत फरमा। समझ आ गई कि उन्होंने ऐसा किया। तो हिजरत इतनी बड़ी नेमत, हिजरत का इतना बड़ा सवाब है कि उसने ये काम किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसको हिजरत की वजह से माफ कर दिया। अच्छा, मशक़त की जमा है, बड़ा छोरी को भी कहते हैं, या तीर की पहचान जो होती है वो हिस्सा सामने वाला उसको भी कहा जाता है। बराजे जोड़ अपने उंगलियों के शहाबत नसरा से तसल्जुल के साथ बहना, तो बाकी जो है ना वो इसका मतलब बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा वयदैहि फ़ग़फ़िर, यदैन को मुक़द्दम कर फरमाया कि उसके हाथों की माफ़। अच्छा, अल्लाहुम्मा का तो पता है ना, अल्लाहुम्मा से में क्या या अल्लाह, तो शुरू से आपको हासिल कर दिया और उसके बदले में आखिर में भी मोशन।
समझा, बाकी वाज़ेह है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, हुज़ूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए खुज़ा, तुम लोगों ने इस मक़तूल को कत्ल किया है हुज़ैन में से, और मैं अल्लाह की कसम उसको दिया देने वाला। तो फरमाया जो किसी मक़तूल को कत्ल करे तो उसके घर वालों को 2 बातों में से एक में इख्तियार है, अगर तो वो चाहे तो कत्ल कर दे, अगर वो चाहे तो दियत दे। अच्छा, ऐसा हुआ हुज़ैल और खुज़ा की लड़ाई थी, तो हुज़ैल कबीले में हुज़ैल ने खुज़ा के एक शख्स को कत्ल किया। फिर फतह मक्का के मौका पर तो उनका कोई शख्स जो है ना वो नजर आया, तो खुज़ा ने उनके एक शख्स को कत्ल कर दिया फतह मक्का के मौके पर। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक खुतबा इरशाद फरमाया, तो खुज़ा को मुखातब करके फरमाया कि तुम लोगों ने इसको कत्ल किया, ठीक है। फिर फरमाया कि जो किसी को कत्ल कर दे तो मक़तूल के वरासा के पास 2 इख्तियार, 2 में से एक इख्तियार को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और फरमाया मैं इसकी दियत मैं दूंगा, फरमाया इसकी दियत मैं दूंगा ताकि फितना फसाद ना खत्म हो जाए। 2 इख्तियार, या तो वो क़िसास ले ले या वो दियत ले, क़िसास ले या दियत ले। अब यहाँ पर इस मसले में इख्तिलाफ, शवाफ़ी और हनाबिला फरमाते हैं कि मक़तूल के वारसा के पास इख्तियार है, चाहे क़िसास ले चाहे दियत ले। अगर वो कहते हैं कि हम दियत लेंगे तो कातिल पाबंद है, तो वो क्या कर दे, दियत दे, वो दियत देने का पाबंद। जबकि अहनाफ फरमाते हैं कौल के मुताबिक मालिकियत के मक़तूल के वारसा से क़िसास ले सकते हैं, दियत कातिल की रज़ामंदी के बगैर नहीं ले सकते। अगर दियत लेते हैं तो फिर कातिल की रज़ामंदी चाहिए। अगर कातिल कहता है कि मैं दियत नहीं दूंगा, मुझे कत्ल कर दो, क़िसास ले लो मुझसे, जान जाए लेकिन माल ना जाए, तो उस सूरत में वो हनाफा मानते हैं वो दियत का मुतालबा नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, क़िसास ही अहनाफ वो इस्तेदलाल करते हैं और उमूम नसूस से वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अल्बाब, अन्ना नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन, जब हमने जिक्र किया उसका जवाब ही देते हैं कि यहाँ पर जो दियत का लफ्ज़ है ना, तो दियत का लफ्ज़ का मतलब है कि वो कातिल के रज़ामंदी से दियत ले, उसके रज़ामंदी का लिहाज रखा जाएगा, तो इस हदीस का ये जवाब।